یہ درست ہے علی امین صاحب کی جگہ سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ وزارت بانی پی ٹی آئی کی امانت تھی، ان کے حکم پر عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ہم بانی کی رہائی اور پارٹی پالیسی کے لیے ایک ہو کر آگے بڑھیں گے۔ سہیل آفریدی کو مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل رہے گی۔ خان صاحب کی طرف سے کے پی کے حکومت اور علی امین گنڈاپور صاحب کے ایز اے چیف منسٹر کے پی کے پی ٹی آئی کے ہمیں ہدایات موصول ہو چکی ہیں۔ خان صاحب کی خواہش ہے کہ پاک کے پی کے کی حکومت میں تبدیلی کی جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی بانی پی ٹی آئی کا اختیار ہے، پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اپنا استعفیٰ مجھے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا استعفیٰ بانی کو دیں یا گورنر کو۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور کے استعفے پر رد عمل۔ کہا کہ مجھے ابھی تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا، پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کو کیوں تبدیل کیا یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے۔ ہفتوں پہلے پیش گوئی کی گئی تھی علی امین عہدے پر نہیں رہ پائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ پھولوں کی سیج نہیں پل صراط ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں علی امین نے تمام بڑے دھڑوں اور لیڈرز کو خود سے دور کر دیا تھا، جس کا انہیں بڑا نقصان ہوا۔ دیکھتے ہیں سہیل آفریدی کیسے چیلنجز سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ بھارت اگر کسی نئے معمول کی بات کرے گا تو پاکستان اس کا جواب ایک نئے اور مؤثر عسکری رد عمل سے دے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک فوج کا دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے عزم، حوصلے اور قربانیوں کو سراہا۔ کہا کہ پاک فوج روایتی، غیر روایتی اور ہائیبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل، غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا اورکزئی میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن، کارروائی کے دوران 19 بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج ہلاک۔ آپریشن میں پاک فوج کے بہادر 2 افسران نے جام شہادت نوش کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف اور میجر طیب راحت شہید ہونے والوں میں 9 جوان بھی شامل ہیں۔ پاک فوج کا علاقہ کلیئرنس آپریشن جاری، بھارتی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کی نماز جنازہ چکلالہ گیریشن میں ادا۔ شہداء نے اورکزئی میں بھارتی خوارج کے خلاف آپریشن میں جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے، شہداء کی قربانیاں مادر وطن کے دفاع کے عزم کی یقین دہانی ہیں۔ کے پی کے کی نئی حکومت کو عقل و فہم کے ساتھ دیرپا امن کی راہ اپنانی چاہیے۔ قبائلی جرگوں اور مقامی قیادت کی شمولیت سے مسئلہ حل ہوگا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا موجودہ پالیسی زور آزمائی پر مبنی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی کم ترین سطح پر تھی۔ آج جب پنجاب سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسے صاف ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسی صفائی ہوتی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وزیر آباد میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ساہیوال میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی۔ پنجاب کے ہر شہر میں 20 روپے والی
मॉडर्न बसेस जो हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो बसेस है पंजाब के हर शहर में, हर सड़क पे इंशाअल्लाह ताला दौड़ती नजर आएंगी। छोटे शहरों की तरक्की अव्वलीन तरजीह। पंजाब में दिसंबर तक 1500 ग्रीन बसें दौड़ेंगी। नून, शीन और मीम को तकसीम करने वाले पहले भी अपने अंजाम को पहुंचे और आइंदा भी पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। पाक पतन में खिताब करते हुए कहा, नून, शीन, मीम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। पहले साजिश करने वालों को धूल चाटना पड़ी, अब साजिश करने वाले भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। पंजाब के लोगों के पास दूसरे सूबों के मुकाबले में ज्यादा सहूलतें हैं। छोटे शहरों को भी तरक्की याफ्ता और खूबसूरत बना रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था फैसलाबाद, साहिवाल और पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पंजाब में परेशान हाल अवाम को फौरी इमदाद देने की बात की, इसमें कोई बुराई नहीं। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल को बेजा तनकीद का निशाना बनाने का जवाब दिया। अज़मा बुखारी सक्खर आ जाएं, उनको दौरा कराएंगे, सिंध के अस्पताल भी दिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से ताल्लुक गैर मुतसलसल और मुस्तकिल अज़्म पर मबनी है। पाक सऊदिया ताल्लुकात को सरमायाकारी और कारोबार की बुनियाद पर मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल से खिताब में कहा, सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया, हर मुश्किल में भरपूर मदद की। मिलकर काम करें तो आलमी सतह में अपना मजबूत मकाम बना सकेंगे। पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। सिविल सर्वेंट्स के असासजात के क़वायद में तरमीम का मुसवदा जारी। IMF की शर्त पर ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे ज़ाहिर करने की तजवीज़। FBR ने मुजवदा मुसवदे पर 7 दिन के अंदर आरा और तजावीज़ तलब कर ली। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ केस पर महफूज फैसला जारी। 2 माह में हल्का बंदियाँ करवाने का भी हुक्म दे दिया गया। कल से हल्का बंदियों का आगाज़ कर दिया जाए। गुज़श्ता मकामी हुकूमतों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को मुकम्मल हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब की नाअहली के बाइस खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल के मुताबिक NA-18 हरीपुर में 23 नवंबर को इलेक्शन होगा। 15 से 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। 6 नवंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। तोशा खाना केस की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत की 342 के सवालात के जवाब दाखिल करने की हिदायत। अडियाला जेल में दौरान समाअत बानी PTI और बुशरा इद्दी को अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मान की जानिब से सवालात के जवाबात दाखिल न करवाने के लिए समाअत अदालती कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा। हुकूमत कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में मामलात को अहसन अंदाज में हल करने की कोशिशों को सराहा। मिस्र में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी मुकम्मल। कैदियों की रिहाई के शेड्यूल और फौज के इनखला के तरीक़ेकार पर गौर। हमास ने मुज़ाकरात में पेश मुतालबात की तफसीलात जारी कर दी। तंजीम के रहनुमा खलील अल हया कहते हैं कि इसराइल के वादों पर एतमाद नहीं है। हम गजा में मुकम्मल जंग बंदी का तरीक़ेकार चाहते हैं। शर्म शेख में जारी मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में कतर, तुर्की और अमरीका भी शरीक। बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे।
इसराइल फौज का गजा में कत्लेआम जारी, वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 13 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अक्टूबर 2023 के बाद से मुसलसल हमलों के बाइस गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 67,000 से जायद हो गई। जाफर एक्सप्रेस हादसे के बाद भारत के गोदी मीडिया का एक बार फिर घिनौना प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया अपने मुल्क में होने वाले फसादात पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने लगा। ट्रैक पर धमाके की वजह से जाफर एक्सप्रेस की चंद बोगियां पटरी से उतर गई थीं, जिससे कुछ अफराद जख्मी हुए थे। भारतीय मीडिया दहशतगर्दी को कामयाबी के तौर पर पेश करने लगा। गोदी मीडिया 11 मार्च के जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले को भी गैर मामूली तौर पर पेश कर चुका। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में मुस्लिम दुश्मन चेहरा बेनकाब आई लव यू मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश हुकूमत का मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुस्लिम अमलाक पर बुलडोजर फेर दिए गए। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुसलमान रहनुमाओं की जायदादों को गिरा दिया गया। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज बंद होने से शहरी खौफो हरास का शिकार। अब तक 83 अफराद गिरफ्तार और 2000 FIRs में नामजद। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 5 दिहाइयों से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लाखों अफगान पनाहगुज़ीनों की मेज़बानी की। शवाहिद से साबित है कि अफगान पनाहगुज़ीनों के कुछ अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर जराइम में मुलव्विस हैं। अब भी तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर महाजरीन मुकीम हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कराची से पाकिस्तान चलता है। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। शहर कायद को मसाइल का गढ़ बना दिया गया है। कराची चेंबर का ताजिरों के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने पर ख़त लिखना लम्हा फ़िक्रिया है। मुल्क में करप्शन बदतरीन सतह पर है। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में गंदम खरीदारी का मुआहदा हो गया। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम खरीदारी के लिए जामे प्लान तैयार। मरीम नवाज ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। गंदम काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर फराहम किए गए। सूबे में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर दस्तियाब है। वज़ीर आला मरीम नवाज के फलाही मंसूबे धी रानी प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 5600 से ज़ायद इज्तिमाई शादियों का आगाज़ 15 अक्टूबर से किया जाएगा। ये फैसला लाहौर में मुनक़िदा धी रानी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ सूबाई स्टीयरिंग कमेटी के 9वें इजलास में किया गया। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने वीडियो लिंक के जरिए की। अक्टूबर 2005 का क़यामत खेज़ ज़लज़ला 20 साल बाद भी खौफनाक ज़लज़ला ज़हनों में ताज़ा है। लम्हों में बस्तियां ज़मींबोस, 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तानी कौम आज अपने प्यारों की 20वीं बरसी मना रही है। ज़लज़ले के शोहदा की याद में आज़ाद कश्मीर भर में दुआइया तक़रीबात। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने पैगामात में कहा ज़लज़ले ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। और जनूबी अफ्रीका होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम इंतजामिया का ऐलान। अजहर महमूद हेड कोच, नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर होंगे। इमरान फरहद बैटिंग, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग और अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच मुकर्रर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।